عزت دی ہے، میں ان کے لیے آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ ملک کی صورتحال بہرحال آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ایک سال پہلے ملک کے اندر ملین مارچز ہوئے، جمعیت علماء اسلام نے ان کا اہتمام کیا، آزادی مارچ ہوا، اس میں جو پبلک کی شرکت تھی وہ بھی بہت دیدنی تھی۔ سیاسی پارٹیوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، بھرپور طور پر کیا، اور آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک مشترکہ ایونٹ کے تحت پہلا جلسہ انہوں نے گوجرانوالہ میں کیا، دوسرا کراچی میں کیا، اور اس میں جو عوام کی شرکت تھی وہ بھی بڑی تاریخی تھی اور بڑی عظیم الشان تھی۔ ظاہر ہے کہ عوام کے اس رائے کو اب نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہر قیمت پر عوام یہ چاہتی ہے کہ ان کا ووٹ چوری کیا گیا اور ان کی امانت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ سو آج جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ ملک میں ایک آئینی حکمرانی کے لیے ہو رہی ہے کہ موجودہ حکمرانی وہ آئینی نہیں ہے، ایک جمہوری حکمرانی کے لیے ہو رہی ہے جس میں عوام کی شراکت کا تصور ہو، عوام کی مرضی کا تصور ہو، اور عوام پر مسلط کیے جانے کی حکمرانی کا تصور ختم کر دیا جائے۔ تو اس حوالے سے ہماری تحریک اور ہماری تحریک کی جو بنیادی مقاصد ہیں وہ پوری قوم پر ہم واضح کر رہے ہیں۔ یہاں سے ہم کوئٹہ جائیں گے، وہاں پر بھی انشاءاللہ العزیز یہی مناظر ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ملک کے دوسرے حصوں میں انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت عوام کی اور پاکستان کے بقا کی جنگ ہے۔ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام طبقے شریک ہیں۔ ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، تاجر طبقہ ہو، چھوٹے دکاندار ہوں، چھاوڑی والے ہوں، روزینے پر گزارا کرنے والے لوگ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں، ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنا چیخ و پکار دنیا کو سنایا، لیکن طاقت کی نشے نے جن کو مدہوش کیا ہوا ہے اور ان کے کان بہرے ہو گئے ہیں، ان کو شاید عوام کی یہ چیخ و پکار اب تک سنائی نہیں دے رہی ہے۔ تو اس کے لیے ایک بھرپور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز پاکستانی قوم کو نتائج مہیا ہو سکیں گے۔ جو ابھی موجودہ حالات ہیں، کیا یہ جو ہے ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے یا؟ دیکھیے، ہم تو پہلے سے ایمرجنسی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈکلیئرڈ ایک مارشل لا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کراچی میں پولیس کے آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، اور ان کو کس طرح یرغمال بنا کر ان سے ایف آئی آر درج کروایا گیا، کیپٹن صفدر کے اوپر جس طرح ریڈ کیا گیا، اور ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی۔ چاروں صوبوں میں فوج کے جو وہاں افسران ہیں ان کی بالادستی ہے، انہی کی گرفت ہے، اور سول انتظامیہ ایک تابع محض کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح یہاں سندھ میں ہوا کہ سول انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کی توہین کی گئی، ان کی تذلیل کی گئی۔ یہ سب کچھ دوسرے صوبوں میں بھی ممکن ہے، کیونکہ وہاں بھی ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے، اور ایپیکس کمیٹیوں میں یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ہے کہ ہم ملک کی دفاع اور ملک کی بہتری کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اکٹھے ہیں، لیکن تمام چھوٹے چھوٹے انتظامی معاملات اس میں بھی ان کی حیثیت ایک بالا تر کی ہوتی ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، ساری انتظامیہ صرف انہی کو جواب دہ ہے، اور یہی ماشاء اللہ کی علامتیں ہوتی ہیں، یہی پھر ایمرجنسی کی علامات ہوتی ہیں۔ تو غیر اعلانیہ ماشاء اللہ یا غیر اعلانیہ ایمرجنسی سے ہم پہلے ہی گزر رہے ہیں، لہٰذا اگر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری جدوجہد پھر بھی بہرحال جاری ہے، اور انشاءاللہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں صوبوں میں فوجی افسران کی جو سول انتظامیہ پر اس قسم کی بالادستی اور پھر معاملات پر ان کی جو گرفت ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے، تاکہ ہماری سول انتظامیہ آزادی کے ساتھ
अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। मौलाना, अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो क्या पीडीएम का इत्तेहाद जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा सर? क्या अगर ये हुकूमत खत्म होती है तो पीडीएम का इत्तेहाद का इंतखाबी इत्तेहाद होगा? बिल्कुल ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये सिर्फ इस मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने और एक आइनी हुकूमत के क़याम के लिए आज़ादाना इंतखाबात फ़िलहाल उसी हद तक महदूद है। पहले भी इत्तेहाद होते रहे हैं, इंतखाब हर एक पार्टी ने अपने तौर पर लड़ा है। हाँ, एडजस्टमेंट की बातें हो सकती हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे से इत्तेहाद भी कर सकती हैं, एडजस्टमेंट भी कर सकती हैं। साथ ही में जो आज कराची में धमाका हुआ है एक बिल्डिंग में और उससे जो जानी नुकसान हुए हैं, मुझे उस पर भी इंतहाई अफसोस है। मैं उस पर अफसोस का इजहार भी करता हूँ। जो शहीद हो चुके हैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं और जो ख़ानदान मुतासर हुए हैं उनके साथ अपनी भरपूर हमदर्दी। कल के खुदा का कहना है कि जो मुक़्तदा क़ुव्वतें मुल्क की वो अपनी पसंद के अलावा कोई बात सुनना पसंद नहीं करती है, जबकि नेब उनका पसंदीदा इदारा है और आप जिस तरह खुल के नेब के मुखालफत कर रहे हैं तो उसका आप सवाल सब कंप्लीट होना प्लीज़, जो जिस तरह मुखालफत कर रहे हैं कि उसका आप क्या समझते हैं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? नंबर 2, फर्क खुदा का ये भी कहना है कि मुल्क की 3 मुंतखब वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, एक को जलावतन किया गया। अब जो सूरत है देखें आप, इस पूरे पस मंज़र में आप क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, यही वो चीज़ें हैं जो माजी में आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिससे कि अवाम और इदारों के बीच में टकराव और तसादुम का तस्वुर पैदा होता है। आज की जो नाराज़गी है और उस नाराज़गी का जो लोग निशाना बनते हैं, कभी भी हमारा दिल नहीं चाहता कि ये इदारे या इन इदारों की शख्सियत वो निशाना बने। वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए वो अपने फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय उससे तजावुज़ करेंगे और दूसरे के इलाक़ों में जाकर उनको डैमेज करेंगे तो फिर उससे ज़रूर मुश्किलात पैदा होती है। लिहाजा पार्लियामेंट अपना काम करे, इंतज़ामिया अपना काम करे, दिफाई क़ुव्वत जो है वो अपनी पेशा वराना खिदमात जो उनकी हैं वो सर अंजाम देते हैं पे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ख़राब होती है जब कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करके दूसरों के मामलात पे। सिंध के साहिली बेटों पे जो कब्ज़ा आपने वाज़े मौक़िफ़ किया है, लेकिन जो डंगी बेट है उधर 2 साल से कब्ज़ा हुआ पड़ा है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? दूसरा, आप पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि आपने जब मार्च का ऐलान किया था तो वो जो दोनों पार्टी हैं मुल्क की वो आपका साथ नहीं दे सकी और आप अकेले से बैठे फिर वो वापस आएंगे, तो क्या समझेंगे कि ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है ये मुस्तकिल तौर पे रहेगा या बीच में टूट जाएगा? इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए, जो सिंध की परसेंटेज जो गैस है, मुख्तलिफ जो हुकूक हैं वो भी मारे जा रहे हैं, और ये जो सिंध पुलिस का एक्शन है जो वफा की तरफ से ये जो यरगुमाल किया गया आईजी को, उस हवाले से भी आप क्या कहेंगे? हम सबसे बढ़कर सूबों के इख्तियारात के अलंबरदार हैं। तमाम सूबे, उनकी हुकूमतें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होने चाहिए ताकि वो भरपूर तौर पर उस सूबे के वसाइल को उस सूबे के अवाम और वहाँ के लोगों के बच्चों के लिए सर्व कर सकें, बाहर से उसमें कोई मुदाखलत ना हो। इसी हवाले से हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सिंध में हो या बलूचिस्तान में, वहाँ जो जज़ायर हैं ये वहाँ की लोगों की मिल्कियत हैं, वहाँ की सूबाई हुकूमतों के ज़ेर तसर्रुफ़ है और उन्हीं के वही जो वसीला है वो कौम के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। सिंध में है तो सिंधियों के लिए, अगर बलूचिस्तान में है तो बलोचों के लिए और वहाँ के अवाम के लिए। तो ये हमारे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से। और ये जो ख़बरें आ रही हैं कि वफाक उन पर कब्ज़ा करना चाहता है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूबों की तरफ से भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा और सूबे कभी भी वफाक कराची वाक़े पर इस बार कबूल नहीं करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी साहब ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है, उससे आप मुतमईन हैं? उस पर इत्मीनान मुझे नहीं चाहिए। उस पर इत्मीनान के लिए पुलिस इंतज़ार कर रही है कि उनका मेरे नज़दीक तो इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर में पूरी कौम को फंसाया जा रहा है। पुलिस चूँकि एक सरकारी मुलाजिमीन का एक इदारा है हमारा, तो वो शायद उस प्रोसीजर का एहतराम कर रहा है, वरना हमारे सामने तो सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। बस जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपका कहना है कि पीडीएम में शामिल जो वो असेंबली से इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? ये ऑप्शन मौजूद है
और अगर हम सूरत हाल यहाँ तक पहुँचती है तो इस्तीफ़े देने का ऑप्शन बिल्कुल वाज़ेह है हमारे पास। बहुत शुक्रिया जी। ये शकील-उर-रहमान साहब जो हैं वो बहरहाल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, उनकी गिरफ़्तारी, और उनके चैनल ने चूँकि हमेशा इस निज़ाम पर तनकीद की है, तो यहाँ पर तो अगर कोई जज भी, कोई सहाफ़ी भी अगर इस निज़ाम पर तनकीद करता है और उनको तायीद नहीं देता तो फिर वो मुजरिम करार दिया जाता है। आईजी वाले मामले पे आप क्या मुतालबा करेंगे, क्या होना चाहिए? इंक्वायरी तो शुरू हो रही है, आप क्या मुतालबा करेंगे कि क्या होना चाहिए? मेरे नज़दीक तो इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है। फौरी तौर पर उन तमाम ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हमारे आईजी को और हमारे उनके मातहतों को यरगमाल बनाकर ज़बरदस्ती उनसे FIR कटवाए हैं और एक मेहमान की बेहुरमती की है कराची में। तो इस सूरत हाल में हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है और मैं तो सिंध से बाहर जाना चाहता हूँ कि तमाम सूबों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी फ़ौजी अफसरान इंतज़ामी उमूर पर अपनी गिरफ्त रखते हैं और वहाँ के सिविल इंतज़ामिया को अपना माता समझते हैं, उनको इससे दस्तबरदार होना होगा। माइक पकड़। साथियों मेरा जेब में जा हम जब लोगों काबू कर पाए